Hello students, very good morning to all. Hope you all are fine and safe at home. In last video we have studied chapter number 7, A Prayer for My Daughter. Today we will study chapter number 8, The Beggar, which is written by Anton Chekhov. Anton Chekhov was born in 1860 and died in 1904. Anton Chekhov was a famous Russian short story writer and dramatist. He belongs from Russia and he was a short story writer and dramatist too. He began writing stories during his days when he was a medical student in the University of Moscow. But after graduation, his graduation was completed on 1884 when he got a degree in medical science medicine. He began to work as a journalist and writer of comic sketches. In this story, he has written about a man who was turned out of the Russian Corps for drunkenness. In this, in this story, he was talking about a man who belongs from Russian and who was working in a Russian Corps, but he removed from there because of his habit of drunkenness. He took to lying and begging, but by quirk of fate, he met someone who changed his life completely. So let's start the story. Kind sir, be so good as to notice a poor hungry man. I have not tasted food for 3 days. I have not a 5 kopeck piece for a night's lodging. I swear my God, for 5 years I was a village schoolmaster and lost my post through the intrigues of the gemstwo. I was the victim of false witness. I have been out of place for a year now. काइंड सर बी सो गुड एज टू नोटिस अ पुअर हंग्री मैन. ये आपकी दया है जो आपने मुझ जैसे गरीब इंसान को नोटिस किया जिसने पिछले 3 दिनों से खाने का एक दाना भी जिसे नहीं मिला है और जिसने खाने को टेस्ट नहीं किया है पिछले 3 दिनों से. आई हैव नॉट अ 5 kopeck पीस फॉर अ नाइट्स लॉजिंग. 5 kopeck piece in the sense it is a Russian money which is represented in the form of kopeck. सो आई हैव नॉट अ 5 kopeck पीस फॉर अ नाइट्स लॉजिंग. एक रात रुकने के लिए मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं एक रात कहीं गुजार सकूं. आई स्वेयर माई गॉड, फॉर 5 years आई वॉज अ विलेज स्कूल मास्टर एंड लॉस्ट माई पोस्ट थ्रू द इंट्रीग्यूज ऑफ द जेम्सटो. 5 साल से मैं एक स्कूल मास्टर रहा हूँ, एक गांव में स्कूल मास्टर रहा हूँ, मगर मैंने अपनी पोस्ट को खो दिया है. इंट्रीग्यूज इन द सेंस साजिश, कुछ लोगों की साजिश की वजह से मैंने अपनी पोस्ट को खो दिया. आई वॉज द विक्टिम ऑफ फॉल्स विटनेस, मैं लोगों की गलत धारणा का शिकार हो गया था. आई हैव बीन आउट ऑफ प्लेस फॉर अ ईयर नाउ, और पिछले 1 साल से मैं बिना नौकरी के बिना किसी काम के यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ. Schwarzkopf, a Peterburg lawyer, looked at the speaker's tattered dark blue overcoat, at his muddy drunken eyes, at the red patches on his cheeks, and it seemed to him that he had seen the man before. Schwarzkopf in the sense the man who meets the beggar. ये वो इंसान है जिससे बैगर अपनी बातें बता रहा है. पेटरबर्ग लॉयर, जो कि एक लॉयर है. पेटरबर्ग सिटी इन पेटरबर्ग इन द सेंस सिटी इन द यूरोपियन पार्ट ऑफ रशिया. ये रशिया में एक सिटी है जहाँ पे ये वकील का काम करते थे. Looked at the speaker's tattered dark blue overcoat, at his muddy drunken eyes, at the red patches on his cheeks. वो क्या देखते हैं, एक डार्क ब्लू कोट में एक इंसान है जिसकी आंखें बिल्कुल नशे में हैं. एट द रेड पैचेस ऑन हिज चीक्स, उसके गालों पे लाल धब्बे बने हुए हैं. एंड इट सीम टू हिम दैट ही हैड सीन द मैन बिफोर, और उन्हें ऐसा देख के लगता है कि इस इंसान को मैंने पहले भी कहीं देखा है. एंड नाउ आई एम ऑफर्ड अ पोस्ट इन द कालिगा प्रोविंस, द बेगर कंटिन्यूड, बट आई हैव नॉट द मीन्स फॉर द जर्नी देयर. ग्रेशियसली हेल्प मी, आई एम ashamed टू आस्क, बट आई एम कंपेल्ड बाय सर्कमस्टेंसेज. वो बोलता है, मुझे इस समय एक कालुगा प्रोविंस इन द सेंस प्रांत, उस जगह पे मुझे जॉब ऑफ़र हुई है, एक पोस्ट ऑफ़र हुई है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उधर जाने तक की यात्रा भी कर पाऊँ. इसलिए आप मेरी मदद करो. और मुझे शर्म आ रही है आपसे पूछने के लिए, लेकिन मेरी हालातों के आगे मैं मजबूर हूँ. Schwarzkopf looked at his goloshes, of which one was shallow like a shoe, while the other came high up the leg like a boot, and suddenly remember. Schwarzkopf क्या देखते हैं
कि वह रबर का जूता पहना हुआ है जो कि नीचे से घिसा हुआ है। वाइल द अदर केम हाई अप द लेग लाइक ए बूट, और एक अगले पैर में वो क्या देखता है कि एक पैर में रबर का जूता पहना हुआ और एक में बूट्स पहना हुआ है। इससे उनको याद आता है कि लिसन, द डे बिफोर yesterday आई मेट यू इन सेडवर स्ट्रीट, he said, and then you told me not that you were a village schoolmaster but that you were a student who had been expelled. Do you remember? वो बोलते हैं, लिसन, मैंने एक डे बिफोर यस्टरडे, एक दिन पहले, कल से एक दिन पहले मैंने एक ऐसे ही इंसान को सेडोवर स्ट्रीट में देखा था जिसने मुझसे ये कहा था कि वो दैट यू वर अ विलेज स्कूल मास्टर। ये नहीं बोला था कि वो स्कूल, तुमने ये बोला है कि तुम एक विलेज स्कूल मास्टर हो, लेकिन उसी समय तुमने ये बोला था कि तुम एक स्टूडेंट हो जो कि वहाँ से निकाला जा चुका है, स्कूल से निकाला जा चुका है। डू यू रिमेंबर? No, no, that cannot be so, the beggar muttered in confusion. I am a village schoolmaster and if you wish it, I can show you documents to prove it. No, no, नहीं नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। वह muttered मतलब धीरे 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 आपस में ही बात करना। The beggar muttered in confusion, वो confuse हो गया। मैं एक स्कूल विलेज मास्टर हूँ, अगर आप चाहो तो मेरे डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हो जिससे कि ये प्रूव हो कि मैं स्कूल मास्टर ही हूँ। That's enough lies. You called yourself a student and even told me what you were expelled for. Do you remember? That's enough lie. बस झूठ, आप ये झूठ यहीं ख़त्म करो। तुम अपने आप को एक स्टूडेंट बता चुके हो और तुमने मुझसे ये भी कहा था कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। क्या तुम्हें याद है? Swarshaw flushed and with a look of disgust on his face turned away from the wrecked figure. स्क्वाट्स फ्लज मतलब एक शर्महीन आंखों से उसे देखते हैं और घृणा की दृष्टि से उसकी तरफ देखते हुए, रेग्ड फिगर इन द सेंस फटीचर इंसान। इट्स कंटेम्प्टिबल, ही क्राइड एंग्रीली, इट्स अ स्विंडल, आई विल हैंड यू ओवर टू द पुलिस, डैम यू, you are poor and hungry but that does not give you the right to lie so shamelessly. It is contemptible है घिनौना, ये बहुत ही घिनौनी चीज़ है। He cried angrily, बहुत तेज गुस्से में चिल्ला के बोलता है। It's a swindle, ये ठगी है, झांसा है ये तुम्हारा। swindle in the sense झांसा। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। अगर तुम पुअर हो, गरीब हो, भूखे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बट दैट डज नॉट गिव यू द राइट टू लाई सो शेमलेसली, वो तुम्हें ये हक नहीं देता है कि तुम इतने शर्मनाक तरीके से झूठ बोलो। The ragged figure took hold of the door handle and like a bird snare looked round the hall desperately. जैसे कि एक बर्ड जाल में फंस जाती है, snare in the sense जाल, उसी तरह वह बैगर भी बुरी तरह से फंस चुका था और इधर उधर desperately मतलब सख्त तरीके से देखने लगा। I am not lying, he muttered. I can show documents. सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ। Who can believe you? Squarshaw went on, still indignant, to exploit the sympathy of the public for village schoolmasters and students. It's so low, so mean, so dirty, it's revolting. तुम पर कौन भरोसा करेगा? और स्क्वारशॉप लगातार बोलते जाते हैं, इंडिग्नेंट इन द सेंस क्रोधित, गुस्से में। टू एक्सप्लॉयट द सिंपैथी ऑफ द पब्लिक, लोगों की सिंपैथी लेने के लिए, लोगों की दया का पात्र बनने के लिए तुम स्कूल मास्टर बने हो, स्टूडेंट बने हो, ये बहुत ही छोटी चीज़ है और बहुत ही मतलबी इंसान हो। इट्स रिवॉल्टिंग, ये रिवॉल्टिंग इन द सेंस विद्रोही। Squarshaw flew into a rage and gave the beggar a merciless scolding. The ragged fellow's insolent lying aroused his disgust and aversion, was an offence against what he, Squarshaw, loved and prized in himself. Kindliness, a feeling hurt, sympathy for the unhappy by his lying, by his treacherous assault upon compassion, the individual had, as it were, defiled the charity which he liked to give to the poor with no misgivings in his heart. The beggar at first defended himself, protested with oaths, then he sank into silence and hung his head, overcome with shame. स्क्वाशॉ फ्लू इनटू अ रेन, वो बहुत तेज गुस्से में और बैगर को बहुत बुरी तरीके से चिल्ला देता है, डांट देता है। द रैग फॉलोज इंसोलेंट, इंसोलेंट मीन ढीठ इंसान। लाइंग अराउज्ड हिज डिस्गस्ट, डिस्गस्ट मतलब घृणा, एंड एवर्शन विरोध, एवर्शन इन द सेंस विरोध, वॉज एन ऑफेंस अगेंस्ट वॉट ही, वो उसे बहुत तेज गुस्से में चिल्ला देते हैं कि तुम बहुत ढीठ इंसान हो
और घृणा के पात्र हो, वॉज एन ऑफेंस अगेंस्ट वॉट ही, जो तुम कर रहे हो उसके लिए। स्क्वाडशॉप लव्ड एंड प्राइज्ड इन हिमसेल्फ काइंडलीनेस, अ फीलिंग हर्ट, सिंपैथी फॉर द अनहैप्पी। वो उस समय स्क्वाड शॉप से बैगर बोलता है कि जो भी मैंने किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, जो भी मैंने किया। स्क्वाड शॉप उसको धीरे से लव्ड एंड प्राइज्ड इन हिमसेल्फ काइंडलीनेस, अ फीलिंग हर्ट, सिंपैथी फॉर द अनहैप्पी। फिर स्क्वाड शॉप उसके लिए थोड़ा सा पिघल जाते हैं, उसके लिए सिंपैथिक फील करते हैं। बाय हिज लाइंग, बाय हिज ट्रेकेरियस अजॉल्ट, ट्रेकेरियस इन द सेंस नमक हराम, assault विश्वासघाती होना। Compassion, the individual had as it were defiled the charity which he liked to give to the poor with no misgivings in his heart. जो भी उनके मन में उसके लिए था, उसने माफ़ी मांगी तो उन्होंने उसको माफ़ कर दिया। द बैगर एट फर्स्ट डिफेंडेड हिमसेल्फ, पहले तो बैगर ने अपने आप को बहुत डिफेंड किया, अपनी बहुत बातें रखी, कुछ कस्में भी खाई, लेकिन कुछ देर बाद वो साइलेंट हो गया और अपना सर स्क्वाड शॉप के सामने झुका लिया और शर्म के कारण उन्होंने उनसे माफ़ी मांग ली। Sir, he said, laying his hand on his heart, I really was lying. I am not a student and not a village schoolmaster. All that's mere invention. I used to be in the Russian choir and I was turned out of it for drunkenness. But what can I do? Believe me, in God's name, I can't get on without lying. When I tell the truth, no one will give me anything. With the truth, one may die of hunger and freeze without a night's lodging. What you say is true, I understand that, but what am I to do? Sir, he said, laying his hand on his heart. सच्चे दिल से वो बोलता है कि मैं झूठ बोल रहा था, ना ही मैं स्टूडेंट हूँ, ना ही मैं एक विलेज स्कूल मास्टर हूँ, ये सब मेरी बनाई हुई कहानी थी। मैं एक रशियन क्वायर में काम करता था, क्वायर इन द सेंस जहाँ म्यूजिशियन लोग काम करते हैं गाने बजाने का। मैं क्वायर में काम करता था, लेकिन मुझे मेरी शराब पीने की आदत की वजह से वहाँ से निकाल दिया गया। मैं क्या कर सकता था? मुझ पे भरोसा कीजिए, भगवान के नाम पे मुझ पे भरोसा कीजिए। मैं झूठ बोलने के अलावा मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। व्हेन आई टेल द ट्रूथ, जब मैं लोगों को सच्चाई बताऊंगा तो कोई भी मुझे कुछ भी नहीं देगा। विद द ट्रूथ वन में डाई ऑफ हंगर, सच्चाई अगर मैं बोलता रहूँगा तो मैं भूख से मर जाऊँगा और रात की ठंड में जम के ही मर जाऊँगा। आप जो देन स्क्वाड शॉप सेज, व्हाट यू से इज़ ट्रू, तुम जो कह रहे हो वो सब सच है, मैं वो समझ रहा हूँ। वट एम आई टू डू, लेकिन मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? वट आर यू टू डू, यू आस्क वट आर यू टू डू, क्राइड स्क्वाड शॉप गोइंग क्लोज अप टू हिम। बैगर बोलता है, आप जो बोल रहे हो वो सब सच है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था करने के लिए, और मैं क्या कर सकता था? तभी स्क्वाड शॉप जवाब देता है कि तुम ये पूछ रहे हो कि तुम्हारे पास करने के लिए क्या है। बहुत तेज़ी से चिल्ला के बोलता है और उसके पास जाके बोलता है, वर्क, दैट्स वॉट यू मस्ट डू, यू मस्ट वर्क। काम वो जो तुम्हें करना चाहिए था, तुम्हें काम करना चाहिए था। वर्क, आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई गेट वर्क, मैं काम कर सकता हूँ, मगर मुझे कहाँ काम मुझे मिलेगा कहाँ? नॉनसेंस, यू आर यंग, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी एंड कुड ऑलवेज फाइंड वर्क इफ़ यू वांटेड टू। तुम अगर चाहो तो तुम यंग हो, स्ट्रॉन्ग भी हो और हेल्दी भी हो, और तुम जहाँ चाहो उस जगह पे काम कर सकते हो। बट यू नो यू आर लेज़ी, पैम्पर्ड एंड ड्रंकन, लेकिन तुम्हें पता है तुम आलसी हो और पैम्पर्ड हो, जहाँ और पियक्कड़ हो, ड्रंकन हो। यू रीक ऑफ वोडका लाइक ए पोथ हाउस, पोथ हाउस इन द सेंस शराब खाना। तुम्हें लत लग चुकी है वोडका की और शराब खाने में बैठने की। यू हैव बिकम फॉल्स एंड करप्ट टू द मैरो ऑफ योर बोन्स एंड फिट फॉर नथिंग बट बैगिंग एंड लाइंग। अपने ही झूठ, अपने ही भ्रष्ट उस नेचर की वजह से तुम अपने ही आप को, हड्डियों को कमज़ोर कर चुके हो, और बैगिंग या झूठ, भीख मांगने और झूठ बोलने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है जिसमें तुम सक्षम हो। If you do graciously condescend to take work, you must have a job in an office in the Russian choir or as a billiard marker where you will have a salary and have nothing to do. अगर तुम चाहते तो तुम मन से काम कर सकते थे, तुम एक ऑफिस में जॉब कर सकते थे, रशियन क्वायर में काम कर सकते थे, या तो एक मार्कर की तरह जो मार्केट में काम करते हैं उनकी तरह काम कर सकते थे, जहाँ तुम्हें सैलरी भी मिलती, एंड हैव नथिंग टू डू, जहाँ तुम्हें ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं होती। बट हाउ वुड यू लाइक टू अंडरटेक मैनुअल लेबर, लेकिन तुम कहाँ, मैनुअल लेबर इन द सेंस जो शारीरिक श्रम करके मेहनत से जो कमाई करते हैं।
I will be bound you would not be a house porter or a factory hand. You are too gentle for that. तुम्हें नहीं लगता कि तुमको एक लग कर कोई भी काम करना चाहिए, या तुम किसी के घर में हाउस पोर्टर की तरह काम कर सकते हो या फैक्ट्रियों में काम कर सकते हो, उसके लिए तुम पूरी तरीके से सही और फिट हो. What things you say really, said the beggar and he gave a bitter smile. क्या आप जो कह रहे हैं वो सच में पॉसिबल है? बैगर बोलता है और एक हल्की सी मुस्कुराहट देता है. हाउ कैन आई गेट मैनुअल वर्क? मुझे ये लगातार श्रम करने वाले काम कैसे मिल सकते हैं? इट्स रैदर लेट फॉर मी टू बी अ शॉपमैन. एक दुकान पे काम करने के लिए मैं बहुत लेट हो चुका हूँ. फॉर इन ट्रेड वन हैज़ टू बिगिन फ्रॉम अ बॉय. और ट्रेड में काम करने के लिए, फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए यंग एज से ही शुरुआत करनी पड़ती है. जब बिगिन फ्रॉम अ बॉय, छोटी उम्र से ही शुरुआत होती है. नो वन वुड टेक मी एज अ हाउस पोर्टर. और कोई भी मुझे अपने घरेलू काम करने के लिए लेगा नहीं. बिकॉज आई एम नॉट ऑफ दैट क्लास. क्योंकि मैं उस क्लास का नहीं हूँ, मेरा लेवल उतना नहीं है. एंड आई कुड नॉट गेट वर्क इन अ फैक्ट्री. और ना ही मुझे कोई भी फैक्ट्री में काम मिलेगा. वन मस्ट नो अ ट्रेड एंड आई नो नथिंग. क्योंकि फैक्ट्री में काम करने के लिए भी लोगों को अनुभव की ज़रूरत है और मुझे ऐसा कुछ भी पता नहीं है. नॉनसेंस, यू ऑलवेज फाइंड सम जस्टिफिकेशन. वुडंट यू लाइक टू चॉप वुड? तुम्हारे पास हर चीज़ का जस्टिफिकेशन पहले ही है. वुडंट यू लाइक टू चॉप वुड? क्या तुम वुड चॉप करना पसंद करोगे, लकड़ियाँ काटना पसंद करोगे? आई वुड नॉट रिफ्यूज़ टू. मैं उसके लिए मना भी नहीं करूँगा. बट द रेगुलर वुड चॉपर्स आर आउट ऑफ वर्क नाउ. लेकिन जो रेगुलर वुड चॉपर्स हैं वो अभी काम के उससे बाहर हैं. ओह, ऑल इडलर्स आर्ग्यू लाइक दैट. सारे इडलर्स आर्ग्यू मतलब आलसी व्यक्ति. सारे आलसी व्यक्ति ऐसे ही आर्ग्यू शिकायतें करते हैं. एज सुन एज यू आर ऑफर्ड एनीथिंग यू रिफ्यूज. जब भी मैं तुम्हें किसी भी काम के लिए बोलता हूँ तुम मना कर देते हो या कोई बहाना बना देते हो. वुड यू केयर टू चॉप वुड फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए वुड, लकड़ी काटना पसंद करोगे? सर्टेनली आई विल बी. हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर. Next, I will continue in next video. For today it is sufficient for you all. I will continue this chapter in next video. Thank you.